हाँ दोस्तों, 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूएस एम्बेसी अगस्त अपडेट के बारे में। उसमें मेरे को बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला दोस्तों, और इतने सारे बहुत सारे सवाल आए कि मैं कमेंट में कमेंट करके देना थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो बना के, छोटा सा क्या, थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो बना के आपके क्वेश्चंस का सभी जवाब दे दूं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लेने के लिए इस वीडियो में, अगर हो नहीं सका तो मैं दूसरा वर्जन बनाऊंगा, मतलब एक सीरीज बनाऊंगा जहां पे जो भी सवाल है मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Tired of watching many YouTube videos on visa tips but still not satisfied? I will help you with my experience and knowledge. Subscribe my channel for regular videos. Thank you. वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों ये कह दूं कि इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे भी दे दूंगा, कि दिखा दूंगा कि अगर आप न्यू है इस चैनल पे नए हो तो किस वीडियो के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं पहले, उसके बाद एक क्वेश्चन और आंसर्स में आ सकते हैं। तो हर बार की तरह मैं क्वेश्चंस लूंगा टॉप से बॉटम तक, क्योंकि बॉटम तो बहुत नीचे चल जाता है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन इसलिए मैं रिसेंट कमेंट से डिमिनिशिंग ऑर्डर में जाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं रीमा टुकी से। रीमा टुकी जी पूछ रहे हैं, प्लीज सर टेल हाउ कैन वी अप्लाई वीजा फॉर इमरजेंसी केस, आई हैव टू अटेंड माय कजन्स वेडिंग इन अक्टूबर, दिस अक्टूबर। Rima, first of all, let me tell you, the attending cousin's wedding is not coming under emergency. I doubt whether you'll get a visa or not. So some people might say that I'm, sounding a little bit negative, or I'm not giving a positive answer. But my job is to give the real picture, Rima, whether you like it or not. The thing is, attending cousin marriage is not so important, and it's not coming under emergency case. If it is a blood relative, then you can fight it back. However, I will tell you the procedure. You need to apply for an emergency visa in the separate section in the US embassy website, and from there, after applying that, you need to write to the embassy saying that I need to attend the marriage, cousin's marriage, and this is very important to go to US, and giving the why it is not so important. See, even I can attend the cousin's marriage. Why it is so important that you need to attend there physically, not verbally, or not virtually or video call. That you need to prove them. Something we need to add strongly, then only they can approve. So based on this background, you need to write to the US embassy. If they're happy with your case, then they'll approve. Then you need to go on, schedule the interview date. So I will leave the link here in my description column. You can go and check the link how to apply, where to apply, and also whom to write to the embassy. So this link I will leave. But however, I have made a detailed video in my channel on how to navigate and how to apply for the expedite visa. I will try to leave that link as well in this description, and I will try to show that picture in this video also. So I hope I answered your question. Moving on to the next question, Rima Toke. Actually, one of the subscriber, that is Aviral, has already replied actually before me. Thank you, Aviral. Aviral mentions that wedding does not qualify as an emergency visa. I agree that, but still, Rima, you please proceed as I advised you. आज का दूसरा सवाल लेते हैं परमिंदर सिंह जी से, जो हमारे रेगुलर डिस्कशन में आते हैं। नमस्कार परमिंदर सिंह जी, जल्दी से B1 B2 वीजा खुलवा दो, हमारे हाथ में नहीं है। ये तो ये कहूँगा कि हमारे हाथ में, हम सबके हाथ में है। अगर सिचुएशन नॉर्मल जल्दी हो जाएगा तो डेफिनेटली यूएस एम्बेसी खोल देंगे नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के लिए। जैसे कि इमरजेंसी केसेस के लिए तो अभी भी ओपन है, लेकिन नॉर्मल होने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा दिन और वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि 2-3 महीना और। तो ऑल द बेस्ट, आशा करते हैं कि जल्दी खुल जाए। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं, जो है शिवानी अवसारी जी से। वो कहते हैं कि H1B वीज़ा में उनके एक ब्लड रिलेटिव यूएस में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं अंडरस्टैंड किया एक्सपायरी होने वाला है, और उनके बॉस 2-3 बार बोलने के बाद भी अभी तक वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। इस केसेस में क्या करना चाहिए? शिवानी जी, मैं यही कहूँगा कि आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, आपके बॉस को कन्विंस करके रिन्यू के लिए अप्लाई करने के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के पास एक अथॉरिटी है। वही कंपनी में जो काम कर रही है वही कंपनी आपको रिन्यू कर सकता है। मतलब जो भी आपकी बेटी या जो भी रिलेटिव वहाँ पे जॉब कर रही है वही कर सकते हैं, तभी वो यूएस में एक्सटेंडेड करके स्टे कर सकती है, नहीं तो उनको वापस आना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपकी बेटी या रिलेटिव जो भी है उनको दूसरे कंपनी में जॉब ढूंढना पड़ेगा। मुझे पता है कि थोड़ा मुश्किल है इस पैंडेमिक सिचुएशन से, लेकिन कोई ना कोई कंपनी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि मेरे भी ऐसे जानकार लोग हैं, जो मेरे फ्रेंड्स एंड कोलीग, जो एक कंपनी में थे
रेजिग्नेशन दे दिया, लेकिन उसी टाइम पे उनको टाइम मिलता है इंडिया वापस आने के लिए, उसी टाइम के बीच में दूसरे कंपनी में जॉब मिल गया, वो अभी भी है। मैं बात कर रहा हूँ कि पैंडेमिक सिचुएशन में, ये नहीं कि मैं पहले किया था अभी किया था, नहीं, पैंडेमिक सिचुएशन में ही उन्होंने जॉब ढूंढा, मिल गया। तो उनको भी कोशिश कीजिए कि बोलिए कि जॉब ढूंढने के लिए अगर मिला कोई भी जॉब, मतलब उनके मुताबिक जो भी कंपनी में मिलेगा, तो उनका वीज़ा H1B नया बन जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, अगर उनको करंट कंपनी में वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया, रिन्यूअल नहीं किया, या फिर H1B वीज़ा अप्लाई नहीं किया, मतलब नहीं मिला, दूसरा जॉब भी नहीं मिला, लास्ट ऑप्शन है कि जैसे एक्सपायर होगा उनको इंडिया वापस आना पड़ेगा विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। इंडिया वापस आके फिर से उनको नया जॉब ढूंढना पड़ेगा और नया जॉब के बेसिस पे H1B पे जाना पड़ेगा। हाँ, दो दो ऑप्शन है, दो सिनेरियो में देख रहा हूँ कि जब इंडिया वापस आएंगी वो, एक तो है कि मिलना मुश्किल है जॉब, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है, आपको पता है। दूसरी बात है कि मिलना थोड़ा आसान है उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी शी वाज इन अंडर H1B वीजा, ऑलरेडी वो यूएस में काम कर चुकी है, शी इज वेल वर्स्ड, राइट, वो जानती है, मतलब शी इज रेडीमेड कैंडिडेट, तो उनको मिलना आसान है। तो मैं 3 ऑप्शन बता दिया, मैं आशा करूंगा कि आप ऑप्शन नंबर 1 को ट्राई कीजिए, ऑप्शन नंबर 2 को भी पैरेलली ट्राई कीजिए, दोनों ट्राई कीजिए पैरेलली, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों पैरेलली ट्राई कीजिए। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, इंडिया वापस आना ही पड़ेगा। और शिवानी जी ने और एक भी क्वेश्चन पूछा है कि मेरे को जवाब कैसे मिलेगा। मेरे शायद आप मुझसे पूछ रहे हैं, अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा जवाब आपको वीडियो से मिल सकता है, कमेंट कॉलम से मिल सकता है, या फिर आप मुझे ईमेल कीजिए, ईमेल से भी जवाब दे सकता हूँ। अगला सवाल लेते हैं राजेश पाटिल जिसे, जो इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि IR5 कैटेगरी का वीज़ा चालू हुआ या नहीं, अगर नहीं हुआ तो कब तक होगा। पॉइंट नंबर 1, राजेश जी, वीज़ा, नॉर्मल वीज़ा अभी तक चालू नहीं हुआ, यानी कि जो नॉर्मल कैटेगरी के लिए है अभी तो, मतलब इमिग्रेंट वीज़ा और क्या बोलते हैं वो, H1B वीज़ा और स्टूडेंट वीज़ा में प्रायोरिटी दिया गया है। ओके, थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, मतलब B1 B2 वीज़ा के साथ ये भी नॉर्मल चालू हो जाएगा, 2-3 महीना लग जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आपने अच्छा लिखा है कि आपने बोला कि ये मतलब IR5 कैटेगरी है, इसका मतलब मैं जानता हूं कि मुझे लगता है कि ये ब्लड रिलेटिव है, आपके माता पिता जो भी है ब्लड रिलेटिव। अगर ब्लड रिलेटिव हो तो आपके पास स्ट्रांग रीजन है कि आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो IR5 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपर्टाइट वीजा नथिंग बट इमरजेंसी वीजा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इमिग्रेंट हो जाएंगे, राइट। तो इसलिए वो अप्लाई कीजिए और आप एम्बेसी को लिखिए कि ये बैकग्राउंड है, ये IR कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता हूँ, दीज आर द बेसिक रीजंस। तो मुझे लगता है कि आपका केस पॉजिटिव है और मिल जाएगा, तो प्लीज आप अप्लाई कीजिए अभी और एम्बेसी को लिखिए। अगला सवाल है अपूर्वा अंग्रेश जी से, वो कहेंगे कि सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। मैं कॉन्टैक्ट नंबर अभी नहीं देख सकता, सॉरी, लेकिन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, यू कैन राइट टू मी, ईमेल कर सकती है मेरे को, मैं ईमेल आईडी यहाँ पे छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप ईमेल कीजिए, हम डिस्कस करते हैं। और ये भी लिखिए कि ईमेल में मतलब यूएस वीज़ा किस कैटेगरी में आप बात करना चाहते हैं, मतलब B1 B2 H1B या एनी अदर वन, ओके। और एक बहुत सा इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है जो रोहिणी बथुला जी से, वो बोले कि H1B वीज़ा अप्लाई किया है और पिटीशन भी अप्लाई कर दिया है, जो एक्सपायर होने वाला है 30 सितंबर को, लेकिन उनको अभी तक ये वीज़ा इंटरव्यू के लिए शेड्यूल नहीं मिला। ये इंपॉर्टेंट है जी रोहिणी जी, एक्चुअली आप टाइम स्पेंड मत कीजिए, एक्चुअली आप मिल जाना चाहे था अब तक। 2 ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन आपको इंटरव्यू शेड्यूल करके इंटरव्यू करना लेना ही पड़ेगा फेस टू फेस, ताकि आपको H1B वीज़ा स्टैंपिंग मिल जाए। अगर एक्सपायर हो गया तो फिर से थोड़ा दिक्कत हो सकती है। बाई चांस अगर एक्सपायर हो गया या 30 सितंबर के अंदर आपको शेड्यूल नहीं मिला, तो आपको अपने कंपनी को फ़ोन करके या लिख के बात करना पड़ेगा कि वो ये रिन्यू करे या एक्सटेंड करवाए, वही कर सकते हैं, एक्सटेंशन आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप कर सकती हैं शेड्यूल और इंटरव्यू, ठीक है। मेरा एडवाइस यही है कि आप एम्बेसी को लिखिए, आपका H1B वीज़ा का पूरा डॉक्यूमेंट, पिटीशन कॉपी जो भी आप रिसीव किए हैं कंपनी से, आपका रेफरेंस नंबर जो भी है पिटीशन का, वो देखिए एम्बेसी को लिखिए, आपके नियरेस्ट जहाँ पे भी है उस एम्बेसी को लिखिए कि 30th मैंने इतना तब अप्लाई किया था इस डेट पे, और सितंबर एंड को एक्सपायर हो रहा है, मेरे को जल्द से जल्द मेरे को इंटरव्यू शेड्यूल करना है, प्लीज़ अरेंज फॉर द इंटरव्यू। मुझे भरोसा है कि वो अरेंज करवाएंगे, प्लीज़ राइट टू इमीडिएटली एम्बेसी को। आप अगर बताएंगे कि किस एम्बेसी को है, मैं वहाँ का ईमेल आईडी दे सकता हूँ, आप कमेंट कीजिए किस एम्बेसी के एम्बेसी आता है आपको, किस मतलब दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता जो भी है,
वैसे भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट है यूएस एम्बेसी का इंडिया का, तो वो भी गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो आपको कोई चारा नहीं है, आपको एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा, यूएस एम्प्लॉय को, कि मतलब एक्सटेंड करने के लिए। सवाल रहे थे यहाँ पे गोरा गुरदासपुरिया जी से, जो कहते हैं कि मेरी वाइफ अमेरिकन सिटीजन है सर, वो आना चाहती है, हमसे मिलना चाहती है, लेकिन वो आ नहीं पा रही है। लेकिन गोरा जी, आप मुझे क्लियरली कंफर्म कीजिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, कि आपकी वाइफ यूएस में है और इंडिया नहीं आ पा रही है, या इंडिया में है और यहाँ पे यूएस नहीं जा पा रही है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, आप बोलना चाहते हैं कि आप इंडिया में हो या आपके होम कंट्री में हो, और आपकी वाइफ यूएस में है, जो कि यूएस सिटीजन है, लेकिन आ नहीं पा रही है। ये इसलिए हो सकता है गोरा जी, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी बंद है, बैंड है, और आपके होम कंट्री में जहाँ पे भी आप, वहाँ पे बंद हो सकते हैं। शायद इसी की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से वो आ नहीं पा रही है। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप इंडियन एम्बेसी को लिख सकते हैं कि मतलब ऐसा-ऐसा ब्लड रिलेशन है, मतलब वाइफ है, मतलब इट्स अ लीगल रिलेशनशिप, एंड शी वांट टू मीट यू, शी वांट टू कम टू योर प्लेस, ठीक है? या तो आप जाना चाहते हैं, नहीं आपका आपका तो मतलब पता नहीं, अगर आप जाना चाहते हैं, वो आना चाहती हैं, हम इसी पे स्टिक करेंगे कि उनको लाना है यहाँ पे। बोले कि आना चाहती है, प्लीज़ हेल्प मी, तो यूएस एम्बेसी आपको हेल्प कर सकते हैं, पूरा बैकग्राउंड देके मतलब उनको लिखिए, और ये भी प्रूफ दीजिए कि रिलेशनशिप का प्रूफ भी, पासपोर्ट भी हो सकता है या फिर अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है। गोरा जी, इसके साथ-साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो अगर आपकी वाइफ यूएस में है, वहाँ का अभी लोकल पॉलिसी क्या कहता है? ये भी हो सकता है कि अब मतलब यूएस में, यानी कि अभी आउटगोइंग फ्लाइट भी बंद हो सकता है, पता नहीं। अगर ऐसा हो तो वो आ नहीं सकती हैं। तो उनको बोले कि वहाँ का सिचुएशन भी फाइंड आउट करने के लिए, वैसे मैं भी आई विल ट्राई टू फाइंड आउट माई सेल्फ करके मैं कमेंट में डाल दूँगा यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे आप होम कंट्री है, जैसे इंडिया में एग्ज़ाम्पल ले लो, इंडिया में तो बंद है, तो स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी से, अगर वो अप्रूव करते हैं तो वो आ सकती है। तो इस सेशन का आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो गया। अगर मुझे बताइए, एंड करने के बाद, ये वीडियो एंड करने के बाद, कि और भी आपको सेशन चाहिए, और भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए, तो मुझे बताना कमेंट्स पे। मैं ज़रूर सेकंड सेशन, सेकंड वीडियो क्वेश्चंस आंसर का लेकर आऊँगा, ताकि मैं और भी क्वेश्चंस कवर करूँ, तो मेरे को आप बताना। तो अगला क्वेश्चन लेने के पहले, जो आज का आखिरी सवाल होगा, जो भी नए देख रहे हैं इस चैनल पे, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यूएस वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, और एनी अपडेट जो भी आता है, मैं तुरंत शेयर करता हूँ आप लोगों से सब, ठीक है? अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बिल दबाएँगे, तो जो भी मैं अपडेट दूँगा, तुरंत आपको मिलेगा। और जब भी मैं लाइव आऊँगा, कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1 बार लाइव आऊँ, आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का आखिरी सवाल लेते हैं। ये आखिरी सवाल है गीतेश पांडे जी से। वो बोलते हैं कि गीतेश जी, मेरे को थोड़ा-सा सवाल ठीक से समझ में नहीं आया। कोशिश कीजिए कि और एक बार लिखने के लिए, या तो इंग्लिश में डाल दीजिए। गीतेश जी, मैं थोड़ा-थोड़ा समझ में आ गया। आप बोलना चाहते हैं कि क्या घर मेरे नाम पे होने से इंडिया में, क्या यूएस ये विजिटर वीज़ा 10 इयर्स मल्टीपल एंट्री का मिल सकता है क्या? ये क्वेश्चन है आपका। और विजिटर वीज़ा में जाके वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? सेकंड सवाल। तो फर्स्ट सवाल का आंसर है कि दोस्तों, आपके नाम पर घर हो या ना हो, ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। अगर घर है आपके नाम पे, तो थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट बनता है, क्योंकि आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आप आओगे ज़रूर। ये मायने नहीं रखता, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट ये यस, एक प्लस पॉइंट बन जाता है। दूसरा सवाल, अगर मल्टीपल एंट्री वीज़ा, यानी कि बी1 बी2 वीज़ा में आप जाते हो यूएस में, क्या मैं वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं, ये इल्लीगल है, मतलब ये ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी की वजह से यूएस एम्बेसी वीज़ा नहीं देते हैं, ठीक है? रिजेक्शन करते हैं। आप जाना मत। अगर बी1 बी2 पे जा रहे हो, तो वापस आना पड़ेगा। वापस आके यहीं से H1B वीज़ा, या जो भी वर्क परमिट कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई करके, इंडिया से ही या आपके होम कंट्री से ही ढूँढ के वहाँ पे वर्क परमिट जाना पड़ेगा। अगर कोई भी इस चैनल पे, मतलब जितने भी लोग हैं हमारे देश में या कोई भी देश में, कोशिश करते हैं कि विजिटर वीज़ा में मैं पहले जाऊँगा, बाद में मैं उसी टाइम फ्रेम में 1 महीना 2 महीना में जॉब ढूँढूँगा, उसके बाद कन्वर्ट करके वहाँ पे रहूँगा, ऐसा मत कीजिए दोस्तों। देखिए, बहुत लोग होंगे ऐसा करेंगे, बहुत लोग होंगे जो ऐसा करवाएँगे भी, लेकिन वो प्रॉपर वे नहीं है। मैं सजेस्ट भी नहीं करता। इस चैनल पे आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट सजेस्ट नहीं किया जो शॉर्टकट हो या इल्लीगल हो, आउट ऑफ द प्रोसेस हो। मैंने वही पॉइंट आपको सजेस्ट किया कि जो प्रॉपर है, प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर प्रोसेस है, पॉलिसी के अंडर है, ठीक है? तो इतना ही था दोस्तों आज के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो मेरा यूएस वीज़ा या अपडेट के बारे में आपको तुरंत मिले। तो अगले वीडियो तक
चलिए, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय। जाते जाते और एक बोनस पॉइंट देके जा रहा हूँ आपको लोगों से। मैंने खुद एम्बेसी को फ़ोन करने की कोशिश की, फ़ोन नहीं लगा, लेकिन उनको लिखा हूँ मैं ईमेल में कि भाई B1 B2 वीज़ा का रिजम्पशन के बारे में आप बताइए। तो मैंने आज ईमेल लिखा है, शायद मेरे को कल परसों तक मैसेज आ जाएगा, रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैं आपसे शेयर कर दूंगा US B1 B2 वीज़ा के अपडेट के बारे में। तो फिर अगले वीडियो के लिए B1 B2 वीज़ा के बारे में वेट कीजिए, ठीक है।